بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پاکستان۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں آواز بہاولپور نیوز چینل اور میں ہوں آپ کا میزبان احمد محمود۔ ناظرین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم آپ لوگوں کے لیے آج کی شخصیت پروگرام لے کر آیا کرتے ہیں۔ آج میں بار ایسوسی ایشن علی پور میں موجود ہوں۔ آج میں آپ کو جس شخصیت کا تعارف کروانے جا رہا ہوں، آپ سینئر قانون دان ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں ملک مجیب الرحمان جکڑ صاحب، ایڈوکیٹ ہائی کورٹ، سابق صدر بار ایسوسی ایشن علی پور۔ آپ 2015 میں صدر رہ چکے ہیں اور آپ 2024 اور 25 میں دوبارہ صدر کے امیدوار ہیں۔ آج ہم بات کریں گے کہ جب آپ 2015 میں صدر تھے تو اس بار میں آپ نے کیا ڈیولپمنٹ کروائی تھی، اور اب آپ الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں۔ اس بار کو لے کر وکلا صاحبان کے لیے کیا اصلاحات لائیں گے؟ تو آئیے قانون کے حوالے سے اور بار کی سیاست کے حوالے سے خصوصی گفتگو کرتے ہیں۔ تو آئیے بات کرتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں۔ السلام علیکم جناب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، خیریت سے ہیں جناب؟ بالکل، بے شکر اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی سر۔ جناب، آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ آپ کا تعلیمی سلسلہ کیسا رہا؟ میں نے ابتدائی تعلیم گورنمنٹ ہائی اسکول ہے ہمارا خیرپور سادات، وہاں سے حاصل کی۔ میں نے گریجویشن ڈگری کالج علی پور سے حاصل کی۔ اس کے بعد جو لا کمپلیٹ کیا بہودین زکریا یونیورسٹی ملتان سے کیا۔ ماشاءاللہ۔ وکیل بننے کا شوق کیسے پیدا ہوا؟ آپ کو خود شوق تھا یا والد صاحب نے کہا کہ وکیل بننا ہے؟ یہ میرے والد صاحب کی خواہش تھی، اچھا۔ اور جو میرے علاقے کے معززین ہمارے بزرگ ہیں ان کی خواہش تھی، کیونکہ ہمارا چھوٹا موٹا وہاں پہ ذمہ دارہ تو تھا، اچھا لیکن ہماری فیملی کا یا ہمارے علاقے کا کوئی وکیل نہیں تھا۔ اچھا۔ تو دوستوں کی خواہش، ہمارے جو والدین ہیں ان کی خواہش پر میں نے لا کیا۔ ماشاءاللہ۔ ایز اے قانون دان آپ ایکسپیرینس ہے آپ کا، ایک اچھے وکیل میں کیا خصوصیات ہونی چاہیے؟ اچھے وکیل میں میری نظر میں ایک تو اس کو سخت محنت کرنی چاہیے اپنے لا میں، ٹھیک، اور جس شعبے میں ہو، فوجداری میں ہو، دیوانی میں ہو یا ٹیکس میں ہو، تو اس پہ مکمل عبور ہونا چاہیے، لا کو جانتا ہوں۔ ٹھیک۔ آپ کس طرح کے کیس ہینڈل کرتے ہیں؟ میں فوجداری زیادہ تر ہینڈل کرتا ہوں، کیونکہ جو ہمارا پہلے میں 2002 میں یہاں پہ علی پور میں آیا جی، تو یہاں کرائم کی ریشو بہت زیادہ تھی۔ ٹھیک۔ اور ویسے فوجداری میں نے جو پریکٹس کی وہاں پہ لاہور، برہان معظم ملک سے ہمارے استاد محترم تھے، ان کا بہت بڑا چیمبر تھا۔ اب بھی وہ جو ہیں برہان معظم ملک صاحب، جو عمران خان صاحب کے جتنے بھی کیسز ہیں جی، لاہور میں، وہ کنٹیسٹ کر رہے ہیں۔ ٹھیک۔ ایک وکیل معاشرے کی اصلاح کے لیے کیا کردار ادا کر سکتا ہے؟ ایک وکیل معاشرے کی جو اصلاحات ہے اس میں اس کا مین رول ہے۔ ٹھیک۔ جو یہاں پہ غریب لوگ ہیں ان کے لیے ان کو کام کرنا چاہیے، جو نادار لوگ ہیں ان کے لیے کام کرنا چاہیے، جو یہاں پہ بیچارے وکیل کھڑا نہیں کر سکتے یا جن کے بھی کوئی مسائل ہیں تو ان کے لیے وہ کافی مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ ٹھیک۔ پاکستان میں انصاف کی فراہمی کو بہتر کرنے کے لیے ایز اے قانون دان آپ کی کیا تجویز ہے؟ میری تجویز یہ ہے کہ جو فوجداری میں عرض کروں گا جی، کہ جب ایف آئی آر ہوتی ہے تو ایف آئی آر کا جو بیسک لا ہے کہ 7 دن کے اندر اندر اس کا جو ہے وہ کمپلیٹ کرنا چاہیے چلان۔ ٹھیک۔ تو چلان اگر جتنی جلدی ہو سکے گا، چلان کا ٹرائل ہو، اتنی جلدی فیصلہ ہوگا، اور فیصلے کے جو اثرات ہیں وہ معاشرے پہ پڑیں گے۔ ٹھیک۔ تو میری خواہش یہی ہے کہ جلد از جلد اس جو انویسٹیگیشن کا جو انہوں نے سلسلہ رکھا ہوا ہے جی، کہ ایک تبدیلی کے بعد دوسری تبدیلی، تیسری تبدیلی انویسٹیگیشن کی، وہ لمبا پروسیس ہو جاتا ہے۔ جتنا جلدی ہو سکے کہ میکسیمم پیریڈ میں اس کی انویسٹیگیشن کو کمپلیٹ کر کے فوراً چلان سبمٹ کورٹ کرنا چاہیے۔ ٹھیک۔ پاکستان کی عدالتوں میں کیس سست روی کا شکار کیوں ہو جاتے ہیں؟ اس کی کیا خاص وجہ ہے؟ اس میں فرسٹ آف آل جو کمپلینٹ ہے، جی، میں تو کہتا ہوں کہ پہلا رول اس کا ہے، اور سیکنڈ رول ہے انویسٹیگیشن کا۔ انویسٹیگیشن کا جو پروسیس انہوں نے لینتھی رکھا ہوا ہے، جی، وہ مجبوری ہے، وہ ہرڈل ہے کہ اتنی تفتیش تبدیلی کے 3-4 مراحل انہوں نے رکھ دیے ہیں۔ 3-4 مراحل کو کمپلیٹ کرتے کرتے سالہ سال لگ جاتے ہیں۔ اگر وہی انویسٹیگیشن 10-15 دن میں کمپلیٹ ہو کے کورٹ میں چلان آئے، فرد جرم عائد ہو، ایویڈنس آئے، ایویڈنس کے بعد فیصلہ ہو جائے،
तो मुकम्मल हो सकता है। ये जो इन्वेस्टिगेशन चेंजिंग का और इन्वेस्टिगेशन के मराहल का जो इन्होंने रख दिया जी। है वो लेंथी है। ठीक, आप 2015 में इस बार के सदर रह चुके हैं, उस वक्त आपने इस बार को लेकर क्या डेवलपमेंट कराई थी? अल्हम्दुलिल्लाह 2015 में मुझे बार एसोसिएशन अलीपुर ने मुझे इलेक्ट किया, तो ये न्यूली बार थी। ठीक। पहले हमारी कचहरी जो थी वो तहसील अलीपुर के वास्त में थी। ठीक। 2012 में हम यहाँ शिफ्ट हुए, 15 में मैं इलेक्ट हुआ हूँ। तो यहाँ पे ये जो हमारे चैम्बर थे, यहाँ पे जो गलियात थी वो कच्ची थी जी। मैंने सबसे पहले यहाँ पे आके मैंने टफटेलें लगवाई उसमें, और उसके बाद यहाँ पे जो अलीपुर का सीपेज का पानी था जी। उसकी वजह से यहाँ पानी जो था वो बहुत ख़राब था, जिसकी वजह से हमारे अक्सर सीनियर वकला जूनियर वकला बीमार हो गए थे। मैंने फ़िल्टर प्लांट लगवाया डीसीओ साहब की मदद से और सेशन जज मुजफ्फरगढ़ साहब की मेहरबानी की वजह से मैंने फ़िल्टर प्लांट लगवाया और टफटेल लगवाई। और यहाँ पे हमारे चैम्बर के पीछे आप मुलाहिजा फरमाएंगे यहाँ पे बिजली भी नहीं थी। जुडिशल कम्प्लेक्स में तो बिजली अवेलेबल थी, हमारे वकला के लिए बिजली अवेलेबल नहीं थी। तो मैंने यहाँ पे बिजली भी वो जनाब इंस्टॉल करवाई। अल्हम्दुलिल्लाह ये 3 मेरे उस वक्त के काम थे। ठीक, माशाल्लाह। अब आप 2024 और 25 के लिए सदर का इलेक्शन कंटेस्ट करने जा रहे हैं। इन फ्यूचर आपके क्या प्लान्स हैं, आपका बेसिक क्या मंशूर है और वकला के लिए क्या इस्लाहत लाएंगे आप? हमारे जो जूनियर भाई अब जो नए आए हैं उनके लिए चैम्बरों की जगह अलाट हो गया। ठीक। चैम्बरों की जगह अलाट होने के बाद वहाँ पे भी यही मसला है कि वहाँ उनके चैम्बरों में एक तो बर्थ नहीं है, मिट्टी की बर्थ होनी चाहिए, वो मैं कराऊँगा। और जो जूनियर वकला हैं वहाँ पे भी उनके जो चैम्बरों के साथ साथ कोई जो गलियाँ हैं वो भी कच्ची हैं, इंशाल्लाह ताला वो भी टफटेल कराऊँगा। और जो मेरी मेन ख्वाहिश है वो ये है कि वकला साहबान के यहाँ पे चैम्बर दिन के तो हैं, लेकिन शाम 4 बजे के बाद वकला साहबान घरों को चले जाते हैं। जिस तरह सिटी में नाइट जो चैम्बर हैं वो अवेलेबल हैं, यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। जो हमारी ओल्ड कचहरी है वहाँ पे मेरा इरादा है कि सबसे पहले मैं ओल्ड कचहरी वाले जो चैम्बर हैं वहाँ इनको नए तमीर करके दूं, ताकि रात को वहाँ पे ये स्टडी करें। और बाकी जो जगह है वहाँ वकला के लिए कोई खेल का मैदान वगैरह जिस तरह है वो मैं इनको बनवा के दूं। ठीक। जब आप सदर बार थे 2015 में, उस वक्त बार और बेंच के ताल्लुकात किस तरह थे, और जब आप सदर बन जाएंगे तो उस वक्त कैसे मेंटेन करेंगे बार और बेंच के ताल्लुकात को? मैं प्रैक्टिशनर वकील हूँ। ठीक। अल्हम्दुलिल्लाह मैं कोशिश करता हूँ कि मसाले से काम चले, और हमारी बार और बेंच एक गाड़ी के ये पहिए हैं। अगर ये दोनों स्मूथ चलें तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई हलचल क्रिएट नहीं होती। वैसे भी अगर कोई अपने ही इहाते में रह के अपनी ही वुसअत में रह के काम करे तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी कोई मसले नहीं आते। हमारे दौर में कोई ऐसा मसला नहीं बना वकला और बार का। बाकी पुलिस के साथ भी मसले मसाइल होते हैं, बाकी इदारों के साथ भी होते हैं। अगर वो हमारी इज़्ज़त करते हैं तो हम भी उनकी इज़्ज़त करते हैं, अगर वो बदमाशी दिखाते हैं फिर हम भी बदमाशी करते हैं। ठीक। अलीपुर शहर के क्या मसाइल हैं जिस पे एज आ कानून दान आपका फोकस हो कि इनको हल होना चाहिए? अलीपुर के जो मसाइल हैं, मेन मसला जो है वहाँ का ना वो है सीवरेज का। ठीक। और हमारे यहाँ अलीपुर जो हमारा सिटी है जी, हालांकि ये हमारी तहसील है 1928 की कायम करदा, लेकिन बदकिस्मती से एक तो हमारा ये डिस्ट्रिक्ट नहीं बन सका। हमारे मुजफ्फरगढ़ ज़िले से ये 87 किलोमीटर के फासले पर है, और जो मुल्तान है उससे 125 किलोमीटर के फासले पर है। तो यहाँ सबसे पहला जो मेन इशू है हमारे लिए वो ये है कि हमारे तहसील अलीपुर को डिस्ट्रिक्ट बनना चाहिए। ठीक। अगर डिस्ट्रिक्ट बन जाती, हालांकि बाकी जितने भी थे, हमारे बाद कोटदू बना है, हमारे बाद लिया बना है, वो डिस्ट्रिक्ट बन गए हैं। अब वहाँ पे जो प्रोग्रेस है या तरक्की का है रेशो वो ज़्यादा है, इस निस्बत हमारी तहसील जो अलीपुर है उसमें तरक्की नहीं है। हमारी कोशिश है कि हमारा सबसे जो हमारा मेन वो है कि हमारा डिस्ट्रिक्ट होना चाहिए अलीपुर। ठीक। सूबा बहावलपुर या मुल्तान, आप क्या राय रखते हैं? हमारी जो राय है वो इस पे ये है कि मुल्तान को बनना चाहिए, क्योंकि मुल्तान जो है वो वस्त में है। क्योंकि जो बखर तक आप इलाके शामिल कर रहे हैं, बखर को से लेकर मुल्तान सेंटर में है।
और यहाँ से अगर रहीम यार खां सादकाबाद से देखा जाए तो वस्त जो है वो मुल्तान बनता है, कोई फ़र्क नहीं है। वैसे ये तो सियासी इशू बना रहे हैं कि बहावलपुर होना चाहिए, मुल्तान होना चाहिए, ये डिवाइड एंड रूल वाला वो बना रहे हैं कि किसी तरीके से इनको डिवाइड किया जाए ताकि ये उसी उलझन में पड़े रहें और जनूबी पंजाब जो है, ये जनूबी पंजाब का जो हमारा सूबा है वो रह जाए। ठीक, आपकी नज़र में कामयाबी क्या है? किस में? ओवरऑल कामयाबी को किस तरह देखते हैं आप? कामयाबी तो मैं सब फर्स्ट ऑफ ऑल कहता हूँ कि अल्लाह ताला की सबसे पहले उनकी जो है मेहरबानी होनी चाहिए, उसके बाद इंसान को मेहनत करना चाहिए। कायद आज़म का जो रूल है मेहनत मेहनत मेहनत, ठीक, वर्क वर्क वर्क, वो करना चाहिए। आपको टूरिज़म का कितना शौक़ है? पाकिस्तान के कौन कौन से शहर अच्छे लगते हैं? आपका पसंदीदा शहर कौन सा है? मेरा पसंदीदा शहर लाहौर है, उसके बाद मेरा बहावलपुर है। ठीक, आपको खानों में क्या क्या पसंद है? पसंदीदा डिश कौन सी है? मैं खानों में मेरी पसंदीदा डिश अगर वैसे महसूस नहीं करना, मैं दाल ज़्यादा इस्तेमाल करता। ठीक, आखिर में सुनने वालों को, देखने वालों को, वकला बरादरी को एज उम्मीदवार सदर बार एसोसिएशन अलीपुर क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं पैगाम यही दूंगा कि जो हमारे जूनियर वकला साहबान हैं, पहले भी उन्होंने मेरे साथ मोहब्बत की, सीनियर हमारे बुज़ुर्गों की तरह हैं, हमारे वालिदैन की तरह हैं, वो मेरे साथ वैसे भी दस्ते शफ़क़त रखते हैं। और जो जूनियर दोस्त हैं मैं उनकी नुमाइंदगी करता हूँ। अल्लाह ताला से मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला जिस तरह उन्होंने पहले मुझसे मोहब्बत की, अब भी मेरे साथ मोहब्बत करेंगे। ठीक, बहुत शुक्रिया, अल्लाह पाक आपको कामयाब करें। मैं आपका भी आखिर में शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हमारे पास आए और हमारे जो मसाइल थे और डिस्कस की, मैं आपका भी मशकूर। जी तो नाजरीन, आपने आज की शख्सियत प्रोग्राम सुना। एक नए प्रोग्राम में मुलाकात होगी, तब तक अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।